السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ پشاور ارمر دھماکے میں جاں بحق مفتی منیر شاکر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ باغ ناران میں مفتی منیر شاکر کے بیٹے نے ادا کی۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مذہبی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ کے دوران رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ دہشت گردی امن و امان کی صورتحال صوبے کا بڑا مسئلہ ہے۔ برملا کہتا ہوں کہ حالات کی خرابی کے ذمہ دار وفاقی حکومت اور ادارے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مجھے صوبے کے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ 2 ماہ سے بھیجے گئے TORs پر آج تک جواب نہیں ملا۔ میں نے انہیں کہا کہ افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ 2018 سے 2021 تک دیکھ لیں کہ کتنی دہشت گردی ہوئی۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کا بجٹ 169 ارب روپے ہے، سرپلس پر چلا گیا ہے۔ حکومت سنبھالی تو ملازمین کے لیے 15 دن کی بھی تنخواہیں نہیں تھیں، آج 3 ماہ کی تنخواہیں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت 50 ارب قرضہ واپس کر چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے PTI کی شرط مسترد کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا APC میں شرکت کے لیے بانی PTI کی پے رول پر رہائی ناقابل قبول ہے۔ PTI قومی مسئلے پر بھی بلیک میلنگ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف APC میں غیر مشروط شرکت کرے۔ APC میں تمام جماعتیں غیر مشروط ساتھ دیں۔ دہشت گردی کے تانے بانے بھارت اور افغانستان سے ملتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر نیٹ ورک معلومات ملنا بڑا بریک تھرو ہے۔ افغانستان کو بار بار کہا BLA اور کالعدم TTP کو باندھ کر رکھو، مگر افغانستان ہمسائے والا کردار ادا نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث ججہ گروہ کے سرغنہ عثمان ججہ کی گرفتاری پر FIA اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلر عثمان ججہ کو گرفتار کرنے والے ہر افسر و اہلکار کو 10-10 لاکھ روپے انعام اور شیلڈ سے نوازا۔ ترجمان FIA کے مطابق عثمان ججہ 2024 میں یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے اموات کے ذمہ داران میں مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ ججہ گینگ متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے یورپ بھیجوانے میں ملوث ہے۔ یورپ داخلے کی کوشش میں کشتی حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی پاکستانی شہریوں کی موت واقع ہوئی۔ وزیر اعظم کو DG FIA جان محمد کی جانب سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کارروائیاں تیز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر FIA اور IB کے افسران کی پذیرائی۔ انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہوئی۔ کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ مکروہ عمل کے باعث کئی لوگ ڈوبے اور اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے۔ انسانی جانوں پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کئی بے گناہ افراد لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ ججہ گینگ کو گرفتار کرنا لائق تحسین ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے جرم کے مرتکب عناصر کی سرکوبی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی اسمگلنگ کا کالا دھندا مکمل طور پر بند کرانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ ججہ گینگ جو ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور اس کالے دھندے میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے کہ بہت نقصان ہوا، بے پناہ لوگوں کا جانیں ضائع ہوئیں، بے پناہ ملک کی جو نیک نامے پر حرف آیا اپنی کمر کسیں اور پاکستان کے وقار اور پاکستان کے نام کو بحال اور بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کاوشیں آپ اپنی بروئے کار لائیں۔ انتہائی امبیرسمنٹ ہوئی، پاکستان کا نام جگہ جگہ لیا گیا کہ ہم ان کے ویزے بند کر رہے ہیں، ان کو آنے دیں گے۔ اتنے پاکستانی سوار تھے ڈوب گئے گریس، موراکو، اٹلی کے ساحلوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔
पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पीपल्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इजलास इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए कमेटी तश्कील राजा परवेज अशरफ कहते हैं पार्टी के शोबा इत्तलात को मुनज़्ज़म करने पर खुसूसी तवज्जो देना होगी, पार्टी के बयानिए को अमली शक्ल में सामने लाना होगा। इजलास में नदीम अफजल चंद, जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा, फैसल मीर, सानिया कामरान, आयशा नवाज चौधरी, बुशरा मंजूर मानिका, एहसन रिजवी, जीशान शामी, राव बाबर, जमील नसीम साबिर, फारूक बसीर, बशारत अली, अमायमा इफ्तिखार, उस्मान आवान शरीक हुए। सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा ने इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ का कहना था सरगर्म सोशल मीडिया के बगैर सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते। नदीम अफजल चंद का कहना था पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुन के दरमियान फासले खत्म करना होंगे। तर्जमानों, सोशल मीडिया, मोबिलाइजर्स और टीवी पर जाने वालों की फहरिस्तें तैयार की जाएं, जबकि पार्टी में कंटेंट राइटर्स की टीम तश्कील दी जाए। सानिया कामरान का कहना था पार्टी लीडर्स को रोजाना की बुनियाद पर पार्टी बयानिए की गाइडलाइन दी जाए। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें भारत मुलविस है। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी कहते हैं कि गैर मुल्की दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। नोशकी में आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। दहशतगर्दी के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। दहशतगर्दी के जरिए मुल्क और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। इस मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 2018 में धांधली करके एमक्यूएम को हराने वाले हार गए हैं। सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मसनूई लीडरशिप जब भी शहर पर मुस्तलद करने की कोशिश की वो नाकाम हुई। हमारे साथ MNAs के बगैर हुकूमत ना बन रही थी ना टूट रही थी। मुकद्दस महीने में खुद को हमला करने वाले किस किस्म के मुसलमान हैं। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। उन्होंने कहा मौजूदा गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस को मुश्किल बना दिया है। आने वाले दिनों में वज़ीर आला हाउस भी वापस लेंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी ने बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम की तरफ से नवीद मलिक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। बानी पीटीआई मुलाकातों की दरखास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बानी पीटीआई मुलाकातों की दरखास्तें यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हमारे अक्सरियत वाली अजला में मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा भी पूरा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के 20,000 से जायद वोट लेने वाले टिकट होल्डर को भी तरक्याती फंड दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नई लोकल एक्ट बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद भी करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो और तमाम महरूमियों को कम करें। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात को देखने के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी गई। नून लीग कमेटी के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम करते हैं तो सिंध में भी पावर शेयरिंग में हिस्सा दिया जाए। सब कमेटी हर हफ्ते पावर शेयरिंग के मामलात पर जायजा लेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक साजिश है, जिसमें भारत समेत दीगर गैर मुल्की अनासर के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशें हैं, जिन्हें हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रावल हाउस राहू की में इफ्तार डिनर की मेज़बानी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तिलात ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए जो मुस्बत सोच रखते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के हामी हैं। सिंध के पानी के मसले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी भी सूरत सिंध के पानी को तकसीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कौम परस्त सियासतदान नहरों के मामले को बुनियाद बनाकर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अवाम उन्हें इंतखाबात में मुस्तरद कर चुकी है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ML1 प्रोजेक्ट पर बयान खुदा हाफिज चीन का सरकारी ऐलान है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वजीर रेलवे ने चीन को लाल झंडी दिखा दी है। हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया है? बैरिस्टर सैफ ने कहा ये बयान चीन की तरफ से $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी के बावजूद दिया गया है। इसहाक डार के मनफी बयान के बाद हनीफ अब्बासी का बयान चीन पाकिस्तान ताल्लुकात पर एक और खुदकुश हमला है। शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा शहबाज शरीफ के वजीर रेलवे का माइनस चीन ML1 बनाने का ऐलान पॉलिसी शिफ्ट है। फॉरेन ऑफिस इस बयान की वजाहत नहीं करता तो इसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में जहां मसाजिद आबाद हो जाती हैं वहां मुखज्जर हजरात रोज़ादारों के लिए दस्तरखान भी सजा देते हैं। पेशावर शहर में एक शख्स ने रमज़ान तंदूर लगा लिया। गरीबों में रोज़ाना 5,500 रोटियां मुफ्त तकसीम करने लगा। मज़ीद भी देखते हैं मोहम्मद फयाज की इस रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही रहमत खुदाबंदी के दरवाजे खुल जाते हैं, मसाजिद भर जाती हैं, मुखय्यर हजरात दस्तरखान सजा देते हैं, हजारों लोगों को अफ्तार कराया जाता है। पेशावर के इलाका सईदाबाद के एक शहरी ने गरीबों के लिए तंदूर खोल दिया। तंदूर के मुंतजिम एहसानुल्लाह का कहना है कि कोरोना में कारोबार मुतासिर होने के बाइस गरीबों और सफेद पोश तबका की मदद के लिए मुफ्त रोटी फराहमी का मंसूबा शुरू किया था। 5 साल से हर रमजान में ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूर दराज से लोग सस्ती रोटी लेने आते हैं। बंदे को टोकन दे देते, कोई बंदा 10 रोटी लेता है, किसी को 15 की चाहिए, किसी को 6 भी चाहिए। अगर ये 10,000 तक भी जाता है तो आपने ब्रेक नहीं लगानी है, मुसलसल आपने 10,000 रोटी बना के लोगों को दे। तंदूर के खजांची यूसुफ खान ने बताया कि सस्ती रोटी लेने के लिए मुख्तलिफ रंगों का टोकन जारी किया जाता है। 10 रुपए की रोटी लेने के लिए ब्लू, मुफ्त रोटी के लिए सुर्ख रंग का टोकन दिया जाता है। ये तरीका कार बिला इम्तियाज जारी रखे हुए हैं। हर खास आम आ सकता है, इधर रोटी ले सकता है। देवाएँ कुंडे, वो यतीम बच्चे हैं जो वो बीमार है, माजूर है, उसको हम मुफ्त में भी रोटी देते हैं। महंगाई के इस दौर में जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल है, वहां मुफ्त रोटी की तकसीम बेहतरीन इंसानी खिदमत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फयाज, नुमाइंदा ABN न्यूज़, पेशावर। गुजरावाला में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि KPK और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और इस मामले पर वज़ीर आज़म ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग तलब कर ली है। नेशनल एक्शन प्लान की तरह एक और नया प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात किए जा सकें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आलमी मार्केट में तेल की कमी के फ़ायदे से पाकिस्तानी अवाम महरूम है। आलमी मार्केट में तेल कमी का फ़ायदा हुकूमत ने अपनी जेब में डाल दिया। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी। बानी PTI की हुकूमत में पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 30 रुपए लीटर थी। आज हुकूमत अवाम से इस लेवी की मद में इजाफी 40 रुपए ले रही है। इससे साफ जाहिर होता है हुकूमत की अवाम की फलाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हाथों में बनी यादगार बुनियादी इंसानी हकूक का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से गायब। यादगार कितनी मालियत की रकम से बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के पास इसका रिकॉर्ड तक नहीं। टेंडर कहाँ हुआ, कहाँ बोली लगाई गई, किस कंपनी ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट के पास इसका भी रिकॉर्ड नहीं। साबिक चीफ जस्टिस काजिफ अजीज़ा ने सुप्रीम कोर्ट के हाथा में बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार बनवाई थी और अपनी रिटायरमेंट के दिन इसका इफ्तिताह भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस ने ये यादगार बनवाई थी। आपको बताएं कि यादगार कितनी मालियत की रकम से बनाएगी, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बनी यादगार बुनियादी इंसानी हकूक का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से गायब। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का H9 रमज़ान बाजार का दौरा। वफाकी वजीर ने सब्जियों और फलों की क्वालिटी का मुशाहिदा किया और बाजार में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया।
ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن بھی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بازار میں موجود گاہکوں سے فیڈ بیک لیا۔ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے وفاقی وزیر کو رمضان بازاروں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی اسلام آباد نے بریفنگ میں بتایا کہ شہر بھر میں مختلف مقامات پر 6 رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 20 فیئر پرائز شاپس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فیئر پرائز شاپس پر سبزیوں اور پھلوں کی 15 آئٹمز پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔